how the questions will come and how we are going to give them. We should write them their answer. सफा वो एक ब्लू कलर की नोटबुक आपके पास थी ना? So now method 2 questions, how it will come and how we are going to give them as an answer. Let us see one question. This is, we are discussing method 2. Method 2. How to identify the question? This is from method 2. You can see the question. This is the question number 1. Y double dash minus 3y dash plus 2y is equal to cos 3x. Y double dash minus 3y dash plus 2y is equal to cos 3x. ठीक है, देखिए अपन हर क्वेश्चन में कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन करना ही करना है, सबको करना है, ठीक है। अभी मैं मेंशन नहीं कर रहा हूँ, कुछ स्टेप्स डायरेक्ट कर रहा हूँ। y डबल डैश का मतलब क्या है? डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। वेरी गुड। डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस 3 इंटू, व्हाट डू यू मीन बाय y डैश? डी वाई बाई डी dy by dx plus 2y is equal to cos 3x. Now we have to write the operator form. I don't want to mention, I want to do it directly. D square minus 3d plus 2 of y is equal to cos 3x. करेक्ट है ना? ऑपरेटर फॉर्म करेक्ट है? Yes, sir. Now the auxiliary equation is how we are getting that? M square. D is equals to M. No need to mention it. That's only for your understanding. Okay, M square M square minus minus 3M 3M plus 2. plus 2 is equal to 0. We don't consider y and we don't consider right hand side values. Now what are the possible factors of this? Minus 3m can be expressed as minus 2m minus m plus 2 is equal to 0. What common here? M common, m minus 2 left off, minus 1 common, m minus 2 left off is equal to 0. Again here you can see, I can also write it as m minus 2 into M minus 1. m minus 1 is equal to 0. Then what do you say? What are the m M values? is equals to 2, 1. 2, 1 or 1, 1. 2. Choice is yours. Yc is equal to, both are different now. C1 e C1 power x plus C2 e power 2x. Exactly. Then after that, today we are going to learn how we are going to find yp value when right hand side is a trigonometric function. Trigonometric में भी specification sin x और cos x ही चाहता। मैं लास्ट में अपन कौन सा मेथड में क्या क्या ट्रिक यूज करें उसका एक टेबल बना के देता हूँ फिर से आप। Okay, sir. yp is equal to, can you tell me what, Zahir? D square, come on Zahir, minus 3d minus 3d plus 2 into cos 3x. Now what we have learned in first method, we have to replace in place of d the x coefficient, right? Method 1 का Yes, रूल sir. वो था। Method 2 का अलग रूल रहेगा। क्या रूल रहेगा यहाँ पर? Put d square is equal to, what is x coefficient here? 3. That one we have to write minus 3 square is equal to minus 9, right? x कोफिशिएंट जो भी है इसको स्क्वायर करके यहाँ पर d स्क्वायर की प्लेस पर रिप्लेस करना। अब आप बोलेंगे सर माइनस 3 होल स्क्वायर, ये तो 9 होता।
अच्छा आप लोग बोलिए ये इसका आंसर क्या होता और इसका आंसर क्या होता? -3 होल स्क्वायर का आंसर 9 होता, ये -9 होता। minus. Very good. What's the difference? Because this square is for real and complex number both, and this square is only for real number. Complex number we are not disturbing. यही रूल है मेथड 2 का, ठीक है ना? माइनस रख के साथ Yes, स्क्वायर करना है, ऐसा ही लिखना है एग्जाम में भी आप। तो d स्क्वायर इज इक्वल टू -3 स्क्वायर इज इक्वल टू -9। तो देन व्हाट अबाउट yp बिकम्स, d को रिप्लेस नहीं कर रहे हैं सर लेकिन यहाँ माइनस आना रहता है यहाँ पे यस क्योंकि x का कंपल्सरी माइनस कोएफिशिएंट लिखना है। 3 है खाली, तो हाँ हम जो लोग भी को है, जो माइनस भी है। अगर लिखना यहाँ पर रहता। सपोज cos 5x रहता तो मैं कैसे लिखता था मालूम? पुट d स्क्वायर इज इक्वल टू -5 स्क्वायर इज इक्वल टू -25। ओके, अगर मैं यहाँ पर मान लो एग्जाम्पल sin x रहता, sin और cos तो सेम रूल है, तो मैं कैसे लिखता था? पुट d स्क्वायर इज इक्वल टू -1 स्क्वायर इज इक्वल टू -1। ओके, यस, एंड इट इज रिप्लेस्ड ओनली d स्क्वायर। मेथड 2 खाली d स्क्वायर को रिप्लेस करता, d को नहीं करता। ओके। -3d + 2 -3d + 2। into cos 3 है। हर मेथड का अपना खुद का रूल है, आपको पूरा यूनिट में सबके रूल्स याद रहना जरूरी है। 1 by it is, if you simplify, -7 -3d into cos 3x, राइट? एक और स्टेप भी इसका लिख सकते हैं अपन चाहे तो। व्हाट इज दैट स्टेप? एक माइनस कॉमन लेके न्यूमरेटर में भिजा देंगे। कैन आल्सो राइट इट एज 3d + 7, ठीक है? थोड़ा सा 3d जाके वो 9 दिख रहा, 3d 3d + 7 माइनस कॉमन ले तो 3d + 7 होता ना, यस, cos 3x। अब देखिए मैं क्या बोला था रूल, डिनोमिनेटर में wherever d square is there, that one we can replace as -9, but here we don't have d square term. Until and unless d term should be there in the problem, we have to do it. d वाला टर्म क्वेश्चन में दिखना ही नहीं है, तो अब मेरे को क्या करना है? डिनोमिनेटर में d स्क्वायर का टर्म बनाना है। ऐसा बनाऊंगा मैं। अब ये वर्ड सुने से पहले, रेशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर। 3d + 7 का रेशनलाइजिंग फैक्टर क्या होता? 3d - वेरी 7, गुड, 3d - 7 by 3d - 7 3d - 7। into cos 3x. Now what happened? This minus must be there, 3d - 7 must be there, and now denominator, what happened to the a denominator? + b into a Very good. - b, Answer is a square means 9d 9d square, square b square means 7 square is 49 + 49। into cos 3x. Already you are the MPC students, you can understand what is going on here. Now अब d square बन गया डिनोमिनेटर में, Yes, ये sir. सब बन गया। फिर रिप्लेस करिए। पुट d square is equal to -9। -3 square is equal to, ओके, even though it is -9, but we have to follow the rules. ओके। Now look at, if you put there, yp becomes -1 by, if d square value is -9, 9 into -9 is -81, -49। ये पूरा काम मैं एक ही बार कर देके -130 एक ही बार लिख दे रहा हूँ, ठीक है? नाउ 3d into cos 3x, 3 तो कांस्टेंट है, एज इट इज रहेगा। What is d stands for? D stands for derivative. What is the derivative of cos 3x? Derivative of cos 3x is -3 sin 3x। cos का साइन हो जाएगा और इसका यस इनर सर। कोएफिशिएंट इज -3, ये हो गया, प्लस ये -7 टाइम्स ऑफ cos 3x एज इट इज। दैट्स इट। अब d कहीं तो भी दिख रहा नहीं, दिख रहा ना? नहीं दिख रहा। दैट्स योर सॉल्यूशन। बट थोड़ा सा अच्छा सा लिख लेंगे माइनस कैंसिल करके। yp इज इक्वल्स टू, इट इज व्हाट, माइनस कॉमन भी ले सकते बाहर, 9 sin 3x, माइनस को बाहर 7 ऑलरेडी ले cos। लिया आप चाहे तो अंदर भी रख सकते हो, चॉइस इज योर।
cos 3x by 130 by 130 और यहाँ पर भी लिख लीजिए 130, right? This is your yp value. Therefore, the general solution is yc plus yp. yes, Y is equals to y is yc equal plus to yp. yc plus yp. But don't skip this step. I am not writing here. You have to write there. yc वैल्यू यहाँ पर है, yp वैल्यू यहाँ पर है, दोनों को ऐड करके लिख देना है. बाद में उसको ऐड करने के बाद उसमें कुछ और कॉमन लेके सबट्रैक्ट करके माइनस करके उसकी बिल्कुल जरूरत नहीं है. ठीक है. Okay, sir. Now moving to the next question. Now, next question is, this is the second question of this method 2. Solve. और एग्जाम में सिर्फ सॉल्व बोलेगा. देखो आपको ये मेथड 2 का है, ये मेथड 1 का है, ये मेथड 3 का है, वो तो आप खुद पहचान लेना है. डी स्क्वायर प्लस 9 इंटू वाई इज इक्वल टू cos 3x. Okay, d square plus 9 into y is equal to cos 3x. Now solution. Directly ये कौन से फॉर्म में है? ऑपरेटर फॉर्म में है. Yes, sir. Directly we start writing the solution. The auxiliary equation is m M square square plus 9 is equal to 0. m square plus 9 is equal to 0. It means m square is equals to minus 9. It means m square is equals to minus 9 can be written as 3i whole square, right? Because I square value minus 1, 3 square is 9. Then m is equal to Yes, sir. square will go that side, 0 plus or minus 3i. So alpha is equal to 0, beta is equal to 3 here. So how to write yc? E power alpha x, फार्मूला लिख रहा हूं मैं यहाँ पर, e power alpha x c1 cos beta x plus c2 Plus sin beta C2 x. sin beta x. Alpha value is 0, मतलब e power 0 तो 1 हो जाता, forget about it. yc is equal to, we are left with c1 cos beta is here already 3 Cos 3x plus c2 plus sin C2 3. sin 3x. तो e पावर x रहा तो यहीं तक ही खत्म हो जाता, पर ये होती है. ये मेथड 2 है बोल के आगे yp भी कर रहा था. Yes. राइट साइड में 0 है तो यहाँ पर खत्म हो जाए. ओके. d square plus 9 into cos 3x. अब यहाँ पे वही रूल अप्लाई करेंगे जो अभी मैं आपको बोला. वो कौन सा रूल है? पुट, बोलो जहीर, व्हाट इज द रूल? पुट डी स्क्वायर इज इक्वल टू, एक्स कोएफिशिएंट क्या है? -3 स्क्वायर इज इक्वल टू -9. सो देन इफ यू सब्स्टिट्यूट इमीडिएटली, -9 plus 9 विल बिकम 0. तो ये कौन सा केस हुआ इसमें? अभी केस ऑफ फेलियर. फेल्यूर. इसका केस ऑफ फेल्यूर का रूल अलग, मेथड अलग, सब्स्टिट्यूशन अलग, केस ऑफ फेल्यूर अलग, रूल अलग, सब अलग. अब यहाँ पर क्या करना है वो ट्रिक है. yp में whenever the denominator will become 0, what we have to do it here is x by 2 लिख के यहाँ पर जो भी टर्म है उसको इंटीग्रेट करेंगे. ठीक है. अब बोलेंगे यहाँ पर अगर सर यहाँ पर cos 3x है ना, x by 2 लिखे, x by 3 आना था. ऐसा नहीं है. यहाँ पर जो भी टर्म है, cos x हो, cos 2x हो, sin 2x हो, sin 3x हो, cos 4x हो, sin 4x हो, whatever it is, अगर डिनोमिनेटर 0 हो रहा, x by 2 लिख के वो जो भी टर्म है उसको इंटीग्रेट करना, खत्म. ओके. कॉमन रूल, cos का इंटीग्रेशन हो जाता sin 3x by 3. तो इसका जो आंसर आ जाता वो आ जाता x sin 2x, 2x 3x, x sin 3x by 3 to the 6. 6. Therefore, the general solution is y is equal to yc plus yc yp. plus yp.
तो ये आपका देखिए सेकंड मेथड का रिवीजन होगा, ठीक है ना। ओके सर। मैं एक क्वेश्चन यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, थोड़ी सी जगह है, वो होमवर्क बोल के लिख। क्वेश्चन है 3 स्क्वायर प्लस 4 इंटू वाई इज इक्वल टू माइनस 12 साइन 2x। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है, इससे रिलेटेड प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, ये मेथड 2 के दो क्वेश्चंस करा। देन आई वांट टू मूव टू द मेथड 3 नाउ। क्वेश्चंस तो मैं आपको पीडीएफ एक भिजाया था, देखिए 80 पेजेस का पीडीएफ है। देखिए आप लोग, यस 80 पेजेस के पीडीएफ में क्या है बोलता हूँ, मेथड 1 के भी, 2 के भी, 3 के भी, 4 के भी, 5 के भी, यूनिट 3 के तकरीबन पूरा रिवीजन है। खाली क्वेश्चन देखते जाइए, मैं जैसा प्रोसीजर बोला वो प्रोसीजर फॉलो करिए, सोल्यूशन आ जाएगा बस। सर एक डाउट था सर। बोलिए। सर फर्स्ट प्रॉब्लम में थर्ड कॉलम में थोड़ा मिस कर दिया था, थोड़ा समझा दे सर प्रॉब्लम की एंडिंग में, फर्स्ट पेज पे सर। ठीक, अच्छी बात, ठीक है। कौन सा ये प्रॉब्लम है? थर्ड, हाँ थर्ड कॉलम सर, थर्ड कॉलम थर्ड की कॉलम एंडिंग सर। एंडिंग मतलब यहाँ पर हाँ क्या सर। करना है, यहाँ पर देखिए डी स्क्वायर वैल्यू -9 अगर सब्स्टिट्यूट कर दिए, सो 9 इंटू -9 इज -81, -49 हाँ इज बिकम्स -130। उसके माइनस वन बाद थर्टी। ये 3 एज इट इज रख के, ये 3 एज इट इज रख के, डी स्टैंड्स फॉर डेरिवेटिव, डेरिवेटिव ऑफ cos 3x। cos का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन, तो यहाँ पे लिखा मैं -sin 3x। उसके बाद इसका जो कोफिशिएंट है वो लिखना, वो दैट इज 3। ठीक है, समझ गया। cos 3x का -sin 3x, उसके बाद माइनस लिख के 7 एज इट इज लिख के cos 3x एज इट इज लिख देना है टेक्स्ट। समझ गया सर। चलिए अभी आप जाएंगे अपन मेथड 3 के पास। मेथड 3 को समझने के लिए कुछ एक्सपेंशन समझना पड़ेगा आपको। वो एक्सपेंशन का नाम है बाइनोमियल एक्सपेंशन। बाइनोमियल एक्सपेंशन, बाइनोमियल एक्सपेंशन। वो पहला फार्मूला जिसको अपन यूज करने वाले हैं, 1 माइनस डी होल टू द पावर ऑफ -1 इज इक्वल टू, if देखिए the logic to memorize the formula, if both of the terms are negative, the expansion is positive, 1 plus d square plus d to the power of 3 plus and so on. Second formula, 1 plus d whole to the power of -1 is equal to 1 plus into minus is minus, so ये minus होगा, फिर next plus होगा, then minus, then plus and so on. Next 1 minus d, if you have power -2, then it's minus into minus plus 1 plus 2d plus 3d square plus 4d cube plus and so on. Next 1 plus d whole to the power of -2, same formula alternately plus minus, 1 minus 2d plus 3d square minus 4d power 3 plus and so on. बाइनोमियल एक्सपेंशन के इमीडिएटली बाद में अब मैं लिख रहा हूँ हेडिंग मेथड 3, मेथड 3, ठीक है ना। मैं डायरेक्ट क्वेश्चन लिख रहा हूँ, इंशाल्लाह आपको डायरेक्ट समझाऊंगा और इंशाल्लाह आपको समझ में भी आएगा। पहला क्वेश्चन है, सॉल्व सॉल्व डी स्क्वायर -3d plus 2 into y
इज इक्वल टू 2x²। अब मेरा क्वेश्चन ये है आप लोगों से, हाउ यू कैन आइडेंटिफाई दिस क्वेश्चन इज बिलोंग्स टू मेथड 3। बोलिए। राइट मेरा साइड e में पावर e पावर x x है है तो ना। मेथड 1, राइट यस साइड में sin x cos x है तो मेथड 3, राइट साइड में x टू द पावर ऑफ m, यानी कि m वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 1 2 3 पॉजिटिव इंटीजर्स, x पावर कुछ भी हो सकता है, तो दैट इज मेथड 3। ठीक है, x पावर m ओके कहाँ पे है ना जी, x पावर 2। यस सर। लेट अस राइट द सॉल्यूशन। पूरे चीजें एक साथ से ही सुने, एक साथ तो पूरा यूनिट अच्छे से समझ में आ जाए। यस सर। द ऑक्सिलरी इक्वेशन इज, क्यों लिख रहे हैं ऑक्सिलरी इक्वेशन, डायरेक्टली ऑपरेटर फॉर्म में है ना जी। यस सर। m² -3m -3m प्लस plus 2। 2 is equal to 0. यस Now the possible factors of this one is what? m² -2m minus m plus 2 is equal to 0. m common, -2 left off, -1 common, m-2 left off is equal to 0. Let's see here what we are getting. m-2 into m-1 is equals to 0। m-1 is equal to 0. So what are the m values? 1, 2। 1, 2. How to write yc? Complementary function कैसे लिखेंगे? c1 e e power power x x plus plus c2 e power 2x। e power 2x, right? c1 c2 तो हो गया। Now important thing, yp is equals to 1 by, जाहिर अच्छे से सुन लो बाबा, यस d सर। square minus 3d plus 2 into 2x²। Now देखिए रूल क्या है, अभी मेथड 1 को एक बार रिवाइज करेंगे। रूल था पुट d इज इक्वल टू एक्स कोफिशिएंट। मेथड 2 का रूल था पुट d स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स कोफिशिएंट along with the minus साइन एंड स्क्वायर। अब मेथड 3 का क्या रूल है, लोवेस्ट डिग्री कॉमन, मतलब ये जो डिनोमिनेटर है उसको आप किसी तरह से ये चार में से एक फॉर्मूले के फॉर्म में बना के उसका एक्सपेंशन लिख देना। समझ में आई बात? यस सर। तो कैसा बनाएंगे, उसके लिए रूल क्या है बोलता हूँ, लोवेस्ट डिग्री को कॉमन ले लीजिए। यहाँ डी स्क्वायर है, यहाँ पर डी का पावर 1 है, मतलब यहाँ पर डी का पावर 0 भी है ना, 2 यस इंटू सर। डी पावर 0 इज 1। तो लोवेस्ट डिग्री कॉमन लेने के लिए पहले वो कांस्टेंट टर्म को पहले लिखेंगे, प्लस यहाँ पर लिखेंगे डी स्क्वायर, यहाँ पर लिखेंगे -3d, और यहाँ पर से 2 को कांस्टेंट को बाहर निकाल के x² इधर लिखिए, दिस इज इक्वल टू 2 इंटू 1 बाई, कैन बी टेक नॉट कंपल्सरी, वी हैव टू टेक 2 कॉमन। ये पूरे डिनोमिनेटर में से 2 कॉमन ले रहे, मतलब यहाँ पर 1 बचता, प्लस डी डी स्क्वायर स्क्वायर बाय 2 -3d, ये पूरों को दोनों को भी 2 से डिवाइड कर, 3 से डिवाइड। कॉमन लेने का मतलब क्या है, वो टर्म से डिवाइड कर रहे हैं, ये 2 हाँ से ये 2 कैंसिल हो जाएगा इंटू x²। अब इसको न्यूमरेटर में लेके जाइए, 1 प्लस डी स्क्वायर माइनस 3d अपॉन 2 होल टू द पावर ऑफ -1 इंटू x। अब देखिए ये अपना जो क्वेश्चन है कौन से फार्मूले के जैसा बन गया, बोलिए। 1 प्लस d पावर हाँ, वो -1 कौन सा फार्मूला, सेकेंड फॉर्म। सेकेंड फार्मूले के जैसा बन गया, 1 प्लस डी पावर माइनस, ये पूरी वैल्यू डी हो गई। अब जो यस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अराइज होता है वो क्या है, हाउ मेनी स्टेजेस वी हैव टू एक्सपैंड दिस। ये तो यहाँ में 4 स्टेजेस लिखा, अपन कितने स्टेजेस एक्सपैंड करेंगे, एक्स का पावर कितना है, 2। 2 बार एक्सपैंड कर, 1 तो कंपलसरी आता है, 4 माइनस माइनस इज दैट डी वैल्यू इज दिस, टोटल वैल्यू इज डी स्क्वायर -3d बाई 2, ये हो गया 1 माइनस डी हो गया, प्लस डी स्क्वायर का मतलब डी स्क्वायर -3d बाई 2 -3d by 2 होल whole स्क्वायर। square।
बस इसकी ब्रैकेट यहाँ पर बंद कर देना, इंटू एक्स स्क्वायर। into x square. यस, नाउ सिंप्लीफाई। 1 into x square is x square Yes. minus, you have to write denominator Minus here first. Now d square of this value, e. मतलब d square का मतलब 2 बार डेरिवेटिव। ये देखिए x स्क्वायर का फर्स्ट डेरिवेटिव क्या आता, 2x आता। सेकंड डेरिवेटिव क्या आता, 2 आता। थर्ड डेरिवेटिव क्या आता, 0 आता। इसके बाद जितने भी करते जाइए 0 0 0 0 चाहते जाओ, ठीक है ना। एक्स स्क्वायर का फर्स्ट अपने 2 बार डेरिवेटिव कर रहे हैं, 2 बार डेरिवेटिव करें तो क्या होता है, एक्स एक बार में 2x, दूसरी बार में, Second में 2. है ना। मैं ये इरेज कर दे रहा हूँ जस्ट Yes. फॉर अंडरस्टैंडिंग। तो 2 बार डेरिवेटिव करें तो 2 माइनस 3 टाइम्स ऑफ एक बार डेरिवेटिव एक्स स्क्वायर का 2x प्लस डिनोमिनेटर इज 4। नाउ a माइनस बी होल स्क्वायर से एक्सपैंड करेंगे तो क्या होता है, देखिए a स्क्वायर मतलब d पावर 4 प्लस b स्क्वायर मतलब 9d स्क्वायर 2ab मीन 3 टू 6d क्यूब। अब देखिए अगर मैं इसको एक्सपैंड करा तो ये एक्सपेंशन आ रहा, मतलब अगर मैं इसको फोर्थ टाइम डेरिवेटिव करा इसको एक्स स्क्वायर को, कुछ तो भी आंसर आता, 0 आता, नहीं. नहीं आता। और थर्ड टाइम में भी मतलब जैसे ही इससे बढ़ जाएंगे ना पावर डी का, वो 0 हो जाता। Yes. तो वहां पर नहीं लिखता हूँ, मैं नहीं लिख के जो जरूरत है वो लिख देता हूँ, या 9 लिखता हूँ। 2 बार डेरिवेटिव करते कि आंसर 2 आता, बस इतना ही लिख रहा हूँ। देखिए ये स्टेप आपको समझ में आना बहुत जरूरी है, समझिए ना। Okay. वो एक्सपेंशन में इरेज कर दे रहा हूँ। एक्सपेंशन में अवर रिक्वायरमेंट इज 9 ओनली एंड 2 टाइम्स डेरिवेटिव आंसर इज 2, राइट। ये 2 1 जा, ये 2 2 जा भी कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से 2 कॉमन भी आएगा। वाई पी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर स्क्वायर माइनस माइनस 2 कॉमन, 2 कॉमन मीन्स 1 माइनस 3x लेफ्ट ऑफ, अपॉन में 2 है और यहाँ पर बचा 9/2। ये 2 से ये 2 भी कैंसिल हो जाएगा। वाई पी इज इक्वल टू ये एक्स स्क्वायर, ये मल्टीप्लाई करेंगे माइनस से, -1 माइनस इंटू माइनस प्लस 3x प्लस 9/2। ये हो जाएगा वाई पी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये प्लस 3x, ये 9/2 में से -1 करे तो आंसर आ जाता 7/2। देयरफॉर द जनरल सोल्यूशन इज, कैसे लिखते बोलिए, y इज इक्वल वाई टू वाई सी प्लस, वाई पे। ये आप लोगों लिखना, मैं नहीं लिख रहा हूँ, आप लोग लिख लेके जो खत्म कर देंगे, ठीक है। सर एक्सपेंशन सिर्फ 2 टर्म्स तक ही बस है सर। नहीं, x के पावर पर डिपेंड करता है, जो x के पावर पे डिपेंड करता है। x का पावर 2 है ना, हाँ सर। 2 स्टेजेस तक करना। x का पावर अच्छा अगर 3 है 3 स्टेजेस तक करना। x का पावर अगर 3 है 3 स्टेजेस तक करना, ठीक ठीक है। है नाउ आई एम मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द एक्सपेंशन डिपेंड्स अपॉन द पावर, अभी बोला ना वही। जहीर के लिए एक अलग क्वेश्चन, थोड़ा सा अलग वाला ले लेता हूँ मैं। सॉल्व सॉल्व डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर -4y इज इक्वल टू एक्स क्यूब, ठीक है। अब मैं इसका सोल्यूशन थोड़ा डायरेक्ट स्टेप में लिख रहा हूँ। देखिए सोल्यूशन में मैं इसका डायरेक्ट ऑपरेटर फॉर्म लिख रहा हूँ, तो ये हो जाता डी स्क्वायर -4 इंटू वाई इज इक्वल टू एक्स क्यूब, राइट। ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखा दो, एम स्क्वायर -4 इज इक्वल टू 0, इट मीन्स एम स्क्वायर इज इक्वल टू एम स्क्वायर माइनस
4 can be written as 2 square equal to 0. A square minus b square can be written as a plus b into a minus c b. minus b is equal to 0. It means we are getting two values of m. What are those two values? एक आ जाता +2, दूसरा आ जाता -2. कैसे लिखते हैं वाई सी? c1 e power 2x plus c2 e power -2. -2. लिखते ना yp 1 by d square minus 4 into x cube. लोवेस्ट डिग्री कॉमन क्या है जी? लोवेस्ट डिग्री इसमें 4 सर, 4. -4 है ना जी. हाँ, -4 प्लस डी स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब. लोवेस्ट डिग्री कुछ कॉमन लेना है, मतलब -4 कॉमन, मतलब 1 माइनस, एक्चुअली माइनस नहीं आता, डी स्क्वायर बाई ऐसा आता -4 डिनोमिनेटर में, और नेक्स्ट सिस्टम में जाके माइनस कर देता हूँ. तो इट्स कंटिन्यूइंग हियर. वाई पी इज इक्वल्स टू ये -1/4 इंटू 1/1 माइनस डी स्क्वायर बाई 4 इंटू एक्स क्यूब. अब ये जो टर्म है इसको न्यूमरेटर में लेके जाइए. वाई पी इज इक्वल्स टू -1/4 इंटू न्यूमरेटर में लेके गया तो 1 माइनस डी स्क्वायर बाई 4 होल टू द पावर ऑफ -1 इंटू एक्स क्यूब. अब एक्स का पावर कितना है? एक्स का पावर कितना है? 3 है सर. तो कितने स्टेजेस एक्सपांड करेंगे? 3. व्हाट आर दोस 3 स्टेजेस? फर्स्ट तो 1 आएगा, ये माइनस इंटू माइनस एक्सपांशन में पूरा प्लस आएगा. ये हो गया पहला डी टर्म. उसके बाद डी स्क्वायर, मतलब डी स्क्वायर होल स्क्वायर इज डी पावर 4 बाई 4 स्क्वायर इज 16. Square 16. अब इसके बाद का जो टर्म आएगा एक्सपेंशन में वो क्या होता? D cube whole power cube आ जाएगा. डी स्क्वायर होल पावर 6 हो जाएगा. 6 इससे बढ़ जाना ना, Yes sir. तो उसको नहीं लिखिए, 0 आ जाएगा. तो नहीं लिखिए, खाली x लिख दीजिए, है ना. Yes sir. दिस इज इक्वल्स टू -1/4 इंटू 1 इंटू एक्स क्यूब इज एक्स क्यूब प्लस डिनोमिनेटर 4 एज इट इज डी स्क्वायर, मतलब दो बार डेरिवेटिव. देखिए एक्स क्यूब है, पहली बार डेरिवेटिव करते कि 3x स्क्वायर आता, दूसरी बार डेरिवेटिव करे तो 6x आता, 6x. और तीसरी बार डेरिवेटिव करे तो 6 आता. Yes. ठीक है, ये याद रखिए. तो दूसरी बार डेरिवेटिव, ये पहला ये दूसरा 6x. ठीक है ना. मैं यहाँ से इरेज कर देता हूँ, ये यूट्यूब पे भी अपलोड होते हैं वीडियोस, तो सही नहीं दिखता है. ये 6x प्लस डिनोमिनेटर 16, 4 बार डेरिवेटिव 0 हो जाता ना जी, ये नहीं लिखना था, कल ये भी नहीं लिखना था. पर 2 जा 2 2 जा 2 3 जा yp is equals to -1/4 into x cube plus 3x/2. और कहीं भी d नजर आ रहा आपको इसमें? नहीं सर. That's your solution. The general solution is Y is equals to YC y is plus equal 5. to yc plus y. क्वेश्चन तो बहुत है, आप लोग बुक में से देख लेना, कर लेना. सैंपल कवर कर रहा हूँ. Now this section will be over again. We have another session also. अब next another session जो है वो 20-25 मिनट के ब्रेक के बाद रहेगा. आप लोग भी थोड़ा ब्रेक ले लीजिए, नमाज के बाद फिर नेक्स्ट सेशन रहेंगे. सबके लिए बोल रहा हूँ मैं, प्लीज ज्वाइन एवरीबडी. ओके, आज और भी और Okay. बहुत सारे सेशंस है आप लोगों के. आज ये यूनिट मैक्सिमम कवर करना है मेरे को, ओके सर. पूरा यूनिट Okay, कवर sir. करना है इंशाल्लाह. ठीक है, Okay sir. ठीक है. Thank you.